کہ راہ خدا میں اپنی یہ دولت لٹائیے، راہ خدا میں اپنی یہ دولت لٹائیے، راہ خدا میں اپنی یہ دولت لٹائیے، یہ دولت لٹائیے، یہ دولت لٹائیے۔ مسجد خدا کا گھر ہے سو مسجد بنائیے، مسجد خدا کا گھر ہے سو مسجد بنائیے۔ جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بناؤ گے، جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بناؤ گے، جنت میں گھر بنے گا جو مسجد بناؤ گے، جو مسجد بناؤ گے، جو مسجد بناؤ گے۔ آسان راستہ ہے یہ جنت میں جائیے، آسان راستہ ہے یہ جنت میں جائیے۔ دولت کو روک کے رکھنے کی عادت خراب ہے، دولت کو روک کے رکھنے کی عادت خراب ہے، دولت کو روک کے رکھنے کی عادت خراب ہے، یہ عادت خراب ہے، یہ عادت خراب ہے۔ دولت کو خرچ کرنے کا جذبہ دکھائیے، دولت کو خرچ کرنے کا جذبہ دکھائیے۔ اجر و ثواب خیر کے کاموں میں ہے بہت، کاموں میں ہے بہت، اجر و ثواب خیر کے کاموں میں ہے بہت، کاموں میں ہے بہت، کاموں میں ہے بہت۔ مسجد بنانا خیر ہے نیکی کمائیے، مسجد بنانا خیر ہے نیکی کمائیے۔ محشر میں سایہ عرش کا صدقہ دلائے گا، صدقہ دلائے گا۔ محشر میں سایہ عرش کا صدقہ دلائے گا، صدقہ دلائے گا، صدقہ دلائے گا۔ محشر کی تیز دھوپ سے خود کو بچائیے، محشر کی تیز دھوپ سے خود کو بچائیے۔ عمران صاحب آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں، ان کا منافقانہ کلمات ہوں گے، اور ان کے بعد 3 کڑاہیوں کی ڈاک کھلی ہے، اور اس کے بعد سنگ بنیاد کیا جائے گا، اور اس سنگ بنیاد کے بعد وہیں پر حضرت قاری صاحب دعا فرمائیں گے۔ تو ہماری بات بغیر کچھ کیے ہوئے ہم تو چاہیں گے کہ ہمارے آئے ہوئے مہمان کو زیادہ وقت ملے، بلکہ ہم دلی خواہش رکھتے ہیں کہ قاری سلمان صاحب جو ہمارے مہمان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے کچھ باتیں رکھیں۔ تو ان تمام سے ہٹ کر آپ اپنے ذہن کو بنا لیجئے کہ ہمیں اب اللہ کے راستے میں اپنے جان کی، مال کی، دامے، درہمے، قدمے، سخنے ہر اعتبار سے تیار ہونا ہے انشاءاللہ۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کی تعمیر میں ہمارا کچھ بھی حصہ لگ جائے وہ اللہ کے لیے کم ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا تو آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس 1 روپیے کے بدلے میں کئی ہزار روپیہ آپ کو میدان محشر میں عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے
آپ حضرات سے بھی اور یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے تمام بزرگ اور تمام نوجوان، یہاں کے نمائندہ طبقہ، یہاں کے صدر سیکرٹری اور جو حضرات ہیں، وہ تمام حضرات اس لیے تیار ہو جائیں کہ بس اب اللہ کے گھر کی تعمیر اگر شروع کر دی گئی ہے تو اب دم ہمیں لینا ہے آخری حد تک پہنچا کر انشاءاللہ۔ تیار ہے نا بھائی؟ اس گاؤں کے لوگ چلیے انشاءاللہ۔ یہاں کے نوجوان سے میں بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان واقعتاً بہت مجاہد ہیں۔ زیادہ تفصیلی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اشارتاً آپ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنا لیا اور انسانوں کے آباد کرنے کا اللہ نے جب فیصلہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، تو سب سے پہلا جو گھر تعمیر کیا گیا وہ اللہ کا گھر تھا۔ روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر یا تو فرشتوں نے کی ہے، یا دوسری بات یہ آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس میں شامل تھے اور فرشتے آپ کے معاون تھے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ایک نبی کے ذریعے سے سب سے پہلا کام جو لیا جا رہا ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا لیا جا رہا ہے۔ اس گھر کی تعمیر میں جن کو معاون بنایا جا رہا ہے وہ فرشتے جیسے نورانی مخلوق کو معاون بنایا جا رہا ہے۔ اس سے اللہ کے گھر کی کیا اہمیت ہے اللہ کے یہاں، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ تاریخ جب آگے بڑھتی ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کا وہ گھر جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں، اس کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، تو دوبارہ نئے سرے سے اس گھر کی تعمیر کے لیے بھی اللہ نے اپنے ایک جلیل القدر نبی کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ نے بڑے اہتمام سے قرآن پاک میں اس واقعے کو ذکر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ قرآن کے پڑھنے والے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور ان کی زبان پر ایک ہی نغمہ تھا۔ میرے بزرگوں، اللہ ہمیں نمائش سے ان کی زبان پر بھی یہی نغمہ ہونا چاہیے، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ میرے بزرگوں، یہ بات یاد رکھی جائے کہ کسی بھی مسلم سماج اور سوسائٹی میں جو مسجد ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف چند وقت جمع ہو کر نماز ادا کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، نہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول جب ہجرت فرماتے ہیں سب سے پہلے جس بات کا اہتمام فرماتے ہیں وہ مسجد کی تعمیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلم سماج اور سوسائٹی میں مسجد ایک مرکز ہے، مسجد ایک سینٹر پوائنٹ ہے، مسجد ایک پاور ہاؤس ہے، اور اس علاقے اور سماج کے تمام گھروں کو اس مسجد سے جڑ کر رہنا ہے۔ کیوں جڑ کر رہنا ہے؟ احادیث میں ہم نے سنا ہوگا کہ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالی 120 رحمتیں کعبۃ اللہ پر نازل فرماتے ہیں، اور یہ بھی بات آئی ہے کہ وہ رحمتیں دنیا کی تمام مسجدوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو جو گھر اپنے محلے کی مسجد سے جڑا ہوا ہوگا یقیناً کعبۃ اللہ میں جو رحمت نازل ہو رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اس گھر تک بھی منتقل ہوگا۔ 32,000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے، جذبہ ہے۔ بستی چھوٹی رہنے سے کیا ہوگا، جذبہ بہت ہے۔
चलिए फूफा, चलिए रियाजुल भाई 32,000 तक पहुंचा है। चलिए माशाअल्लाह, पहली कढ़ाई 35,000 रियाजुल भाई की तरफ से। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, जिस जुनून के नतीजे में काम आगे बढ़ते जाया करता है। हमारे रियाजुल भाई की तरफ से 35,000 रुपये। आप लोग भी बोलिए, और भी दूसरे नौजवान साथी हमारे नहीं है, आप कैसे? चलिए बोलिए, आप भी बोलिए, 35,000 36,000 बोल दे। नईम भाई की तरफ से अभी सोच में वो कायम गया। चलिए 36,000 माशाअल्लाह, हमारे फूफा की तरफ से 36,000 रुपये। पहली कढ़ाई 36,000 रुपये जनाब बशीर फूफा तरफ से। और आगे बढ़े और अपने जज्बे को, अपने हौसले को आगे बढ़ाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह पहले खिलाता था, इस पैसे को देने के बाद उससे बेहतर खिलाएगा इंशाअल्लाह। 38,000 रियाज भाई की तरफ से। चलिए माशाअल्लाह, 38,000 पहली कढ़ाई के लिए रियाज भाई की तरफ से। अरे आप लोग भी तो कुछ बोलिए। चलिए आप लोग बोलिए। हमारे आदम भाई हैं, सरफराज भाई हैं, हमारे शाहजहां भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारी नजर में जिनका नाम हम जानते हैं। आप लोग भी 40,000 बशीर फूफा की तरफ से। चलिए माशाअल्लाह, हबीब भाई भी हमारे मौजूद, इदरीस भाई भी यहाँ मौजूद है। आपका भी हिस्सा होना चाहिए। आप भी कुछ बोलिए। 40,000 41,000 रियाज भाई की तरफ से। चलिए माशाअल्लाह, ये पहली कढ़ाई की बोली लगाई जा रही है। 10,000 से शुरू की गई थी कमेटी की जानिब से, अब वो पहुंची है 41,000 तक, जो रियाज भाई के नाम से अभी है। और कोई साहब अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपनी तरफ से देखिए, आपका जज्बा ही काम देगा, और यही जज्बा ये नौजवान देखकर आगे बढ़ेंगे। 42,000 हमारे फूफा की तरफ से, यानी बशीरुल फूफा की तरफ से। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। चलिए हमारे इदरीस भाई भी हैं, और भी नईम भाई वगैरह बहुत सारे लोग हैं, हम नाम ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोग हिस्सा लीजिए। चलिए 42,000 हमारे बशीरुल फूफा की तरफ से। 45,000 माशाअल्लाह, हमारे रियाजुल भाई की तरफ से 45,000 रुपये पहली कढ़ाई के लिए। पहली कढ़ाई के लिए 45,000। अल्लाह ताला हम तमाम के घर में खैर बरकत का नज़ूल फरमाए, और खुसूसी तौर पर जनाब रियाज भाई और जनाब बशीर साहब और इस तरह के जितने हजरात अपने जज्बे और जोश के साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत 46,000 बशीर फूफा की तरफ से। 46,000 हमारे बशीर फूफा की तरफ से। नाम खाली मत करो। 46,000 हमारे बशीर फूफा की तरफ से। 49,000 माशाअल्लाह, रियाज भाई की तरफ से 49,000। 50,000 बशीरुल साहब की तरफ से। माशाअल्लाह, ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, ये होता है हौसला। और हम सब का ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह रिस्क देता है, वो रिस्क मांगा नहीं करता है। अल्लाह के रास्ते में जितना खर्च किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बेहतर अंदाज में देता है, जिसका गुमान भी इंसान को नहीं हो पाता है। चलिए 49,000 हमारे बशीर फूफा की तरफ से। 50,000 रियाज भाई की तरफ से। 50,000 रुपये रियाज भाई की तरफ से। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 51,000 हमारे बशीर फूफा की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों हज़रात जज्बे के साथ आए हैं और अपने हौसले के साथ। दोनों भाई भी हैं। तो हमको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। 54,000। 54,000। तो भाई में घर में नहीं लड़ना है, भाई में लड़ाई नहीं है। देखिए ये अल्लाह जिसको चाहेगा, भाई में लड़ाई होती है तो भाई 56,000 माशाअल्लाह। रियाजुल भाई और बशीरुल फूफा। बशीरुल फूफा ये पीछे है। 56,000 माशाअल्लाह। हमको लगता है आप मेरी इज्जत रखिए। चलिए 56,000। 59,000 माशाअल्लाह। 60,000 बशीरुल फूफा। नारे तकबीर,
नारे तकबीर। जोर से आवाज दीजिए भाई। देने के लिए तैयार है, अपने जान की भी, माल की भी, और हर एतबार से अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार है। चलिए 85,000 रुपये 84। तो दूसरी कड़ाई आपके सर में दे देते हैं। नहीं तो उसमें आप रख दीजिए और था। पहली कड़ाई तो लास्ट बोली जो आपकी तरफ से आई थी, तो दूसरी कड़ाई की वो फाइनल बोली हो जाए क्या? 80,000 था ना उनकी तरफ से, है ना? पहली कड़ाई 3, ये पहली कड़ाई की बोली अब खत्म की जा रही है। 84,000 रुपये पर पहली कड़ाई फाइनल की गई। जनाब रियाजुल अंसारी साहब जो हमारे लिए बल्कि हम तमाम के हौसले को बुलंद करने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के राह में अपने माल को कुर्बान करने के लिए खड़े हुए हैं। पहली कड़ाई मुकम्मल कोकदोरों से है क्लियर ये कोकदोरों बत्ती है माशाअल्लाह। और ऐसा है मेरा वालिद साहब हाजी सोल हाजी कासिम, जितना भी फर्श में या टाइम चाहे मार्बल लगेगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। इन्होंने अपने वालिद मोहतरम और हम तमाम को भी ये सोचना चाहिए कि जो हमारे आबा व अजदाद इस दुनिया से जा चुके हैं, यही वो सब चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तक पहुंचाता रहेगा, ता क़यामत पहुंचाता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। इन्होंने अपने वालिद मोहतरम की तरफ से जनाब हाजी कासिम जो अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और उनको उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाते हुए हमेशा हमेशा वाली ऐसी जिंदगी नसीब करवाए जो जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब। चलिए इन्होंने अपने माशाअल्लाह पहली कड़ाई खत्म। दूसरी कड़ाई का मामला हमारे सरपरस्त हजरात यहाँ मौजूद है, उन हजरात से पूछकर यही तय किया गया है कि 80,000 तक हमारे बशरुल खुदा पहुंचे थे और वो दूसरी कड़ाई में उसको एंड कर दिया गया है। यानी दूसरी कड़ाई हमारे बशरुल खुदा की तरफ से 80,000 रुपए में तय हो गया है माशाअल्लाह। तीसरी कड़ाई जिसकी शुरुआत होना तो चाहिए था, जो हम लोगों ने तय किया था कमेटी की तरफ से कि 10, 7 और 5। सिर्फ मस्जिद बनाना नहीं है, बल्कि मस्जिद को हमा जहत आबाद करना। हमा जहत आबाद करने की तस्वीर हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब नबी दामत बरकातहू ने आप लोगों के सामने बहुत अच्छी तस्वीर बयान कर दी। ये मंदिर है जहाँ से बहुत सारे इस्लामी और ईमानी काम अंजाम पाते हैं। यहीं से इस्लाम की स्पिरिट पैदा होती है, यहीं से इस्लाम के अंदर जान डाला जाता है और यहीं से इस्लाम की आबियारी होती है और इस्लाम के मानने वालों की रूहानियत को बालिदगी और मजबूती दी जाती है, वो यहीं से होती है। इसीलिए हमें आज की इस्लामी प्रोग्राम के साथ साथ इसकी मुकम्मल आबादी की भी फिक्र करनी चाहिए। यह हमारे प्रोग्राम को कायम करने की और रवाज देने की हम लोगों को कोशिश भी करनी चाहिए। नबी के लिए अच्छा हाँ आइए मुफ्ती साहब इधर लाइन लग जाओ नहीं जी वहीं से निकालना
अल्लाह अकबर। तो है कि दूसरी हेलो बोला तो दूसरे नंबर पे कौन चलिए आइए तामीर हो रही मस्जिद, क्या कहेंगे काम मुबारक पर? हमने जो सुना था दरदाग बस्ती को, तो एक गुमनाम तरह का एक तस्वुर था, लेकिन यहाँ हाजिर हो करके मुझे खुशी हुई कि यहाँ लोगों ने बड़ी दरियादिली दिखलाई और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में इस घर को तामीर करने का इरादा किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस घर की तामीर का गैबी इंतज़ाम फरमाए और इस गांव वालों को जिस तरीके से सभी लोग जुटे हुए हैं आखिर वक्त तक जब तक कि मुकम्मल तामीर ना हो जाए इसी तरीके से एकजुटता को दिखलाते रहें और मुत्तहिद होकर के अल्लाह के घर की तामीर में लगे रहें। अल्लाह इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। आज सरज़मीन दरदाग में हाज़िरी हुई। माशाअल्लाह यहाँ के गांव के लोग जो हैं उन्होंने इरादा किया है कि मस्जिद को नए सिरे से तामीर किया जाए। सबसे अहम बात ये है कि माशाअल्लाह गांव के नौजवान बज़ाते ख़ुद इसमें लगे हुए हैं। ये बहुत मुबारक अमल है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ये गोया कि अंबियाए किराम की सुन्नत है। अंबियाए किराम बज़ाते ख़ुद अपने हाथ से तामीरी काम में हिस्सा लेते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ आपने मस्जिद नबवी की तामीर की। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह का मंज़र यहाँ पे हमें दिख रहा है। हम दुआ करेंगे अल्लाह गांव वालों की इस काविश को कबूल फरमाए और इस मस्जिद के तामीर के सिलसिले में अल्लाह गैबी इंतज़ाम फरमाए। आमीन। दरदाग बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी बस्ती है और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोगों ने दरियादिली का सबूत दिया है। अल्लाह के घर की तामीर के लिए जो नौजवान भी लगे हुए हैं और कई रातों तक कई दिन के कई पहरों में ये लोग काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कामों को छोड़कर। ये जानी माली हर एतबार से कुर्बानी पेश कर रहे हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरदाग बस्ती में आना हुआ है मस्जिद की संग बुनियाद के सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि यहाँ बहुत पुरजोश और बहुत अज़्म जवां के साथ तमाम नौजवान लगे हुए हैं सुबह और शाम। मैं पहले से भी जानता हूँ बस्ती छोटी ज़रूर है लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूँ लोगों को। तो उन्होंने तन मन धन की बाजी लगाई और मस्जिद में ये दिन और रात को लगा करके ये काम कर रहे हैं। ये यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको और हौसला अता फरमाए और मस्जिद को पाए तकमील तक पहुँचाए। बाद हैं यहाँ के नौजवान हजरात और तमाम बाशिंदगान, उन्होंने बड़ी मेहनत व जाफशानी रात दिन एक करके एक छोटी मस्जिद जो इनके ख़्याल में तंग मालूम हो रही थी इसको कुशादा और वसी करने में भरपूर लोगों ने ताउन किया और माशाअल्लाह बोली भी बड़ी भारी रकम के साथ इन लोगों ने लगाई और हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब कासमी की सरबराही और उनकी क़यादत में कड़ाही का यहाँ पर देना हुआ कलम पर और बहुत सारे मेहमान किराम भी दूसरे जगह से आए, खुसूसन कोकदरों से आए मेहमान किराम, उन्होंने बढ़ चढ़ कर पहली कड़ाही ली। सभी लोग काबिल मुबारकबाद है यहाँ के नौजवान हजरात। अल्लाह ताला इनकी इस्तिकामत को बाकी रखे और मस्जिद की तकमील तक यही जोश व जज्बा रहे, फिर उसके बाद आबादी में भी इनका पुरजोर ताउन रहे, खुसूसन नमाज वगैरह में। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।